With more than 65% of population of India living in rural areas, it is necessary to have employment and self-employment opportunities for the economic development of these areas. With main source of income coming from farming, many migrate to urban areas in search of jobs. They mostly engage in labor work as they are not educated enough for lucrative jobs. Women usually get household jobs like cooking and cleaning and are unable to earn enough to even support their families. With the aim to address this concern, in the year 2020, ICECD along with JBGVS Bajaj implemented a pilot project for women in Udham Singh Nagar, an industrial district of Uttarakhand. Here too, the rural population faces similar challenges. Lack of economic opportunities, lack of motivation to do business of their own, and lack of skills were few glaring concerns. ICECD, having developed over 1 million entrepreneurs across India, came with its expertise and experience to this project. In 2020, the pilot program was conducted where 100 rural women were trained for self-employment and entrepreneurship. At the end of the pilot project, 63 out of 100 women started their own need-based businesses and started earning anything between 5,000 to 30,000 rupees per month. Following the success of this pilot project, ICECD and JBGVS scaled up this initiative further. The new project, Women Entrepreneurship Development Program, was designed. The ICECD team of experts systematically began implementation of this project in the year 21-22. ICECD conducted a needs assessment study to identify viable local business opportunities in these areas. Once the entrepreneurial opportunities were identified, need-based training was designed and potential women were selected for this training. A 3-week extensive training program was implemented covering 385 women divided into 14 different batches. When it comes to ICECD's way of implementing the Women Entrepreneurship Development Programs, it is never limited to the typical classroom training program. So our work begins when we get into the grassroots level, get into the villages, meet these women, expose them to the various opportunities that they have to start their own businesses, earn their own living and supporting their families. The training program begins after a structured selection process. ये पूरी ट्रेनिंग 21 डेज मतलब कि 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं और उसके अंदर कौन सी कमियाँ ये हम पहचानते हैं और उसको दूर करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट सिलेक्शन तरफ ले जाते हैं, मतलब उनको कौन सा बिज़नेस करना है और कैसे करना है, उनके गांव में कौन सा बिज़नेस अच्छी तरह से चलेगा, आसपास के शहर में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कैसे बेचेंगे। इसके बाद हम उसको मार्केट सर्वे के लिए ले जाते हैं। मार्केट सर्वे के अंदर जो भी बिज़नेस सिलेक्ट किया है, बिज़नेस पसंद किया है, वो बिज़नेस का सामान कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, कहाँ पे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे और प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम उसको मार्केट में ले जाके खुद उनको अनुभव करवाते हैं। ये तीनों की चीज़ के बाद इन्वेस्ट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इससे कितना सामान खरीदना पड़ेगा, कहाँ खरीदना पड़ेगा और जितना इन्वेस्ट किया है उसके सामने कितने % उसको प्रॉफिट मिलेगा, ये हम बिजनेस प्लान को बनवाते हैं। फिर उसके लिए जो लोन की ज़रूरत हो तो लोन के लिए अप्लाई भी करवाते हैं। ICECD training basically deals at 3 levels: arousal of motivation, development of skills and hand-holding and support in such a way that these women are later linked with finances, linked to raw material, linked to the market, so that they can establish their businesses and sustain, keep growing and keep adding to their family incomes. महिलाओं को हम जीरो से लेकर जब तक वो बिज़नेस चालू नहीं करते तब तक हम उसको पूरा ट्रेन करते हैं। 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम उसको 6 महीने तक फॉलोअप भी रहते हैं, जिसके अंदर उसका बिजनेस कहीं भी ऐसा लगे कि नहीं चल रहा है या कोई मदद की ज़रूरत हो तो हमारी संस्था उनके साथ खड़ी रहती है। इस तरह हम उसको एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर बनने में हम लोग सहायता करते हैं, जिससे कि उनका आर्थिक विकास हो सके। About 60% of these women have already started their business across manufacturing, service and trading sectors and are earning anything between 5,000 to 20,000 rupees per month already.
Now let's meet some of these women. यहाँ पंचायत घर में मीटिंग हो रही है, तब मैं वहाँ पर गई तो मुझे आईसेट के बारे में पता चला। आईसेट के मेंबर्स वगैरह आए थे, जो सर वगैरह, कविता मैम वगैरह आए तो उनसे हमें जानकारी मिली। कविता मैम आई थी हमारे गांव में फॉर्म भरने के लिए कि हमारे गांव में ट्रेनिंग आ रही है। वो हमें मतलब आर्थिक सहायता के लिए प्रेरणा देंगी, वो हमें समझाएंगी। यहाँ हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी में मीटिंग थी, वहाँ पे कविता जी आई, उनसे हमें काफ़ी अनुभव मिला। उन्होंने कहा कि आप कुछ कर सकते हो, करो। मंजीत भैया हैं और मंजीत भैया ने हमें कविता मैम से मिलाया और इसके माध्यम से हमने जानकारी मिली कि हम कुछ काम करें। संगीता बुआ की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, वहाँ पे दीपक सर आए थे, तब उन्होंने बताया था। 20-25 दिन की ट्रेनिंग थी, उसमें हमें प्रेरणा दी। उन्होंने अच्छा सिखाया कि जो अपना व्यापार करना चाहते हो कर सकते हो। बिजनेस का नॉलेज बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे शुरू कर सकते हैं। पहले हम कम लागत लगा के शुरू करेंगे, फिर पता चलेगा कि कैसे प्रॉफिट हो रहा है। डेली हमें व्यापार के बारे में, अपने बारे में, अपने हुनर के बारे में पहचानना सिखाया। ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीख मिली कि हम कैसे करके व्यवसाय करें, आगे कैसे बढ़ें, अपने बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल बनाएं। सर बहुत कुछ बताते थे व्यापार के बारे में, हमें कैसा बिजनेस करना चाहिए और कैसी बोलचाल रखनी चाहिए, मतलब सामान हमें कहाँ से लाना है, कैसे बेचना है, और बिजनेस करने की इच्छा भी जागी। इस पे सिखाया गया था कि कैसे व्यापार करना है और किस माध्यम से करना है। जो भी गलतियाँ होती थी वो हमें समझाते थे कि अगर घर बैठने से अच्छा अगर तुम कुछ करो। हमें इतनी जानकारी नहीं थी बिजनेस के बारे में कि कैसे सामान लाया जाता है, कैसे बेचा जाता है। अनुभव अच्छा रहा, इसी वजह से मैं व्यापार शुरू कर पाई। बहुत कुछ हमें जानकारी प्राप्त हुई। पहले ठीक थी, पर मैं चाहती थी कुछ नया करूं। ट्रेनिंग लेने से पहले सोचते थे कि हमारा भी बिजनेस हो, कोई काम हो जिससे हम आगे बढ़ें। घर पे कभी टाइम मिलता था, दिहाड़ी भी चली जाती थी मैं। उसके बाद ये कपड़े भी जो आते, कपड़े भी सिलाई कर लेती थी, सिलाई भी आती थी और ये कपड़ों के पैसे भी आते थे जो मैं खरीद के लाती, इसे बेचती थी। तो इससे मैंने दोनों को मैनेज कर लिया। क्योंकि हम सिर्फ हाउसवाइफ थे, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे और अपनी पहचान बनाना चाहते थे। कि महंगाई इतनी है, एक जनों से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। शुरुआत में तो काफ़ी समस्या आई क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर हमने सोचा कि मतलब सबसे ज़्यादा हमें मतलब क्या चीज़ ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें सर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमने बनाना शुरू किया, उसका व्यापार करना शुरू किया। इतना पैसा था नहीं और आजकल इतनी महंगाई है, दुकान में पैसों की परेशानी थी, तो हमने समूह से भी मदद मांगी और कुछ अपने तरफ से भी किया। अभी की परिस्थिति अब धीरे धीरे सही होने लगी है और पहले से हम काफ़ी कामयाबी हैं। मुनाफा पहले महीने में तो 3000 हुआ था, अभी 15 दिन के अंदर, अभी त्योहार का सीजन था इसलिए मेरा 5000 हो गया 15 दिन के अंदर। इसमें लगभग 25,000 का निवेश किया है, जिसमें हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। 2-2.5 लाख का सामान पड़ा होगा। मुनाफा तो 10 तक का हो जाता है, 8-10 हज़ार का। पर डे का 600-700 रुपये हो ही जाता है। 4-5 हज़ार तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा 10,000 तक हो जाता है। शुरुआत में 20-30 हज़ार का मैंने इसमें सामान लगाया था, अभी तो 50 हज़ार का है सामान। अभी मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो पहले मैं 5 हज़ार कमाती थी, अब मैं 10 हज़ार कमा रही हूँ। हमने 2.5 लाख रुपए लगाए तो 15 से 20 हज़ार की आमदनी हुई। तो 40-40 हज़ार का बच्चे ने बेच लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मेरी जान पहचान भी बहुत अच्छी हो गई है। पहले घर में रहती थी तो किसी को पता ही नहीं चलता था, रहती नहीं रहती हूँ। पहले से समस्याएं कम हो गई हैं और उम्मीद है आगे भी समस्या कम हो जाएगी, लेकिन इसे छोड़ूंगी नहीं मैं, क्योंकि ये मेरे बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए बहुत अच्छा काम है मेरे पास। जैसे मैंने घर में काम किया है वैसे ही मैं हर महिला से कहूँगी वो भी अपने घर का काम करें। बच्चे सभी के होते हैं, सबके घर में परेशानियाँ आती हैं, अपना काम करें, अपना रोज़गार करें। बाहर नहीं जाना चाहती हैं तो वो घर में ही अपना रोज़गार करें। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपना काम खुद करो, अपने आप में खड़े रहो,
किसी बात की कोई समस्या नहीं हुई और वास्तव में वही बात हुई। मैं खुद से अपना काम शुरू किया, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। आईसेट बजाज कंपनी की तरफ से हमें बहुत कुछ सिखाया गया है और सरों को हम और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। बजाज और आईसेट को मैं धन्यवाद करती हूँ जिसके द्वारा मैं बिजनेस अपना कर पाई हूँ। बजाज से बहुत बहुत धन्यवाद और हमको जिनसे ट्रेनिंग मिली जिससे हम ये शुरुआत करते हैं। शहर और बजाज का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। मैं आईसेट और बजाज को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ बजाज और आईसेट का। मैं आईसेट और बजाज का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी जानकारी दी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बजाज, आईसेट। These 385 women from Udham Singh Nagar of Uttarakhand are now fully equipped with knowledge and skills to start and run a successful business. Come what may, now there's no stopping them. They now have the potential to sustainably earn from a viable business that they know how to run. They are truly empowered.